Right, but what is the role? Like, what do they do? What were the keywords? They try to maintain the goodwill of the company's image, and if there is a negative publicity about the company or its products, then it has to be treated as an emergency situation, and the public relations department has to take drastic steps in order to control the damage or to minimize the damage. Yes? Yes, very important. So we were talking about the functions of the PR department. This topic is also called the role of public relations. वैसे PR is not the preferred abbreviation short form for this. तो आप पेपर में पूरा लिखेंगे, PR नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे public relations. Okay. So the first one we covered was press relations. That is, we have to maintain like a contact with the press media, because we want that they should publish true facts about us or our product. So we have to maintain a good contact with them. So the public relations department is in contact with the media to present true facts and a correct picture about the company. Otherwise, the news can get distorted if taken from other sources. Okay, can you explain product publicity? What did we study in this? Correct. Then we were talking about corporate communication. कंपनी की तरफ से जो भी communication होता है पब्लिक के साथ या फिर इवन एम्प्लॉयज के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. So all that you write in your newsletter, in your annual report, in your brochures, in articles, in any audiovisual material that you give out, that the content should be very well drafted and should be very positive. तो इसमें वैसे हमने कहाँ तक लिखा था? Can you just read once? Within the organization. ठीक है. Continuing here with this is usually done with the help of newsletter, annual reports, brochures, articles, and audio visual materials. ऑडियो विजुअल मटेरियल. तो जो भी कंटेंट आपका लोगों तक पहुंचता है वो सब बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. देखो बहुत ही सारे सेंसिटिव मैटर्स हो सकते हैं. जैसे अगर आपने किसी रिलीजन के बारे में कुछ गलत बोल दिया ना, दिस इज वेरी सेंसिटिव मैटर. इससे तो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट कंपनी की इमेज बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो सकती है. या किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, तो ये भी लोग ज़्यादा अच्छा नहीं समझते कि आप ओपनली किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुरा बोल रहे हैं, किसी को बहुत अच्छा बोल रहे हैं. तो इस तरह के जो सेंसिटिव मैटर्स हैं वो ना ही आप उनको टच करो तो बेटर है. दिस इज एन एग्जाम्पल, राइट? जैसे recently you might have seen in news that Ranbir Kapoor and Alia Bhatt went to Mahakal temple in Ujjain, and they were not allowed to because Ranbir Kapoor made some statement years ago about consuming beef, right? So
Now, they are public personalities, public figures. So they again have to be very careful about what they speak, especially in a country like India where, anyone can just get up and start protesting about against people or political parties. तो इस तरह की चीज़ों से जितना हो सके बचें और पॉजिटिव इमेज ही क्रिएट करें. देन अगेन वट एवर यू से इन द स्पीच या मीडिया के साथ अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप कंपनी के कोई टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, अगेन यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू स्पीक. Speeches by the company's executives at a meeting ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जैसे कोई मीटिंग है ट्रेड एसोसिएशंस की, एग्जाम्पल है ये एक, या फिर आपके इंटरव्यूज विद टीवी चैनल्स, या कोई भी आप कहीं इवेंट पे गए हैं, वहां पे लोग या मीडिया आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है, इंटरव्यूज विद टीवी चैनल्स और रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज from the media can go a long way in promoting public relations. In promoting public relations. Right, Vishay? Yes. Okay. Then the next point is lobbying. Lobbying. तो लॉबिंग का यहाँ पे मतलब है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कॉरपोरेट्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के साथ भी एक अच्छा कांटेक्ट बना के रखना चाहिए. बिकॉज गवर्नमेंट जैसे है वो भी इंडस्ट्री के लोगों से पूछती है कि किस तरह की पॉलिसीज सूटेबल रहेंगी हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए. तो हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के साथ भी एक अच्छा रैपो बना के रखना चाहिए. अब इसमें भी अब नेगेटिव भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के लोगों के साथ आप मिल गए हो और ब्राइबरी कर रहे हो सो दैट वो आपकी फेवर में पॉलिसीज बनाए. नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, बट अगर उसको ना देखें, अगर सिर्फ पॉजिटिव की बात करें तो मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज किया कि यहाँ पे सभी कंपनीज को हम इनवाइट करते हैं और हम डिस्कस करना चाहते हैं कि किस तरह की पॉलिसीज हमारी कंट्री को आगे लेकर जा सकती है. तो आप उसमें जाएं, उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें अच्छी सजेशंस दें गवर्नमेंट को सो दैट जो भी पॉलिसीज बने उससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, जीडीपी बढ़े. राइट? So the organization has to deal with government officials and different ministries in charge of corporate affairs, जैसे Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Industries, Finance, Ministry of Finance, with respect to policies relating to business and the economy. The government also seeks to maintain, government भी कोशिश करती है कि वो एक अच्छे relations बना सके इन एसोसिएशंस के साथ. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फिकी और CII, ये एक दो बड़ी एसोसिएशंस हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड कॉमर्स. फिकी एंड CII. The full form of CII is Confederation of Indian Industries and this is Federation of Indian Commerce and Industries. I'll show you the full form here. ये देखो, Federation of Indian Chambers of Commerce of India is FICCI and CII is Confederation of Indian Industries. तो ये बड़ी बड़ी एसोसिएशंस है, ग्रुप्स है. तो गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि वो इनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बना के चले और इनकी सजेशंस ले.
ताकि ऐसी पॉलिसीज बन पाए जिससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, राइट? So, I'll repeat this. The government also seeks to maintain a healthy relationship with the associations of commerce and industry like FICCI and CII, and solicits the opinion of major stakeholders while formulating industrial telecom taxation policies. तो गवर्नमेंट भी जब कोई मेजर पॉलिसीज बनाती है वो भी चाहती है कि हम इन एसोसिएशंस का ओपिनियन लें, तो हमें एक पॉजिटिव सजेशन देनी चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ इट, बीइंग अ कॉर्पोरेट हाउस। The public relation departments then has to be really proactive in promoting or decoding regulations that affect them. Also PR डिपार्टमेंट का काम है कि वो एक पॉजिटिव रिलेशन बना के चले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ। ऑल्सो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनी है उनका हम पे क्या इफेक्ट होगा उसको भी स्टडी करना उनका काम है, राइट? Okay, so lobbying is maintaining positive relations with the ministries, different ministries and government officials. The organization has to deal with government officials and different ministries or different ministers, you can say, who are in charge of these ministries. Different ministers in charge of जैसे corporate affairs, industry, finance, with respect to policies which are relating to business and economy. With respect to policies relating to business and the economy. Okay. फिर गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि वो भी एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखे इन एसोसिएशंस के साथ। The government also seeks to maintain a healthy relationship with associations of commerce and industry. Example, FICCI and CII, and वो उनके ओपिनियन को भी सॉलिसिट करती है, इनवाइट करती है, and solicits the opinion of major stakeholders while formulating various policies. Major stakeholders while formulating industrial telecom taxation policies. Industrial telecom taxation policies, etc. Yes, so this is enough.
Do you understand this, Vishal? The last point under functions of PR department is counseling. Counseling. Okay. Can I go to the next page now? तो काउंसलिंग में विषय वो कह रहे हैं कि आप ना किसी अगर सोशल कॉज के साथ जुड़ जाओ तो भी आपकी एक पॉजिटिव इमेज बन सकती है. जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ काम करें, चिल्ड्रंस राइट्स या फिर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, कुछ भी एक ऐसा जनरल पब्लिक इशू आप उससे एसोसिएट हो सकते हैं जिससे आप रियली यू फील अटैच्ड टू. तो इससे भी लोगों के मन में आपकी एक पॉजिटिव इमेज बन सकती है. येस और नो? यस. तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं तो वो किसी ऐसे सोशल कॉज से एसोसिएट होते हैं, तो एक थोड़ा सोशल वर्क भी हो जाता है और लोगों की नजरों में हमारी पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट हो जाती है. सो लाइक दैट. हियर the public relations department advises the management on general issues which affect the public and the position the company would like to take on a particular issue. The company can build goodwill by contributing money and time to certain causes like environment, wildlife, children's rights, education, etc. Such cause-related activities help in promoting public relations and building goodwill. सिंपल सी बात है. किसी ऐसे जनरल पब्लिक इशू के साथ आप एसोसिएट हो जाएं, उसके लिए आप मनी और टाइम डिवोट करें, तो इससे एक पॉइंट होता था ना, बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ते थे 11th में, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस. तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही पार्ट मान सकते हो आप कि यू शुड सर्व द सोसाइटी. बट इससे इनडायरेक्ट बेनिफिट भी क्रिएट हो रहा है, विच इज दैट द गुडविल इज गेटिंग बिल्ट अप. ओके. द कंपनी कैन बिल्ड goodwill by contributing money and time to certain causes like environment, वाइल्ड लाइफ, जो भी आपको लगता है कि यू फील फॉर दैट, उससे आप एसोसिएट हो सकते हैं. चिल्ड्रंस राइट्स, एजुकेशन, एटसेट्रा. इससे आपका पब्लिक रिलेशंस भी इम्प्रूव होता है और गुडविल भी बिल्ड होती है. सच cause related activities help in promoting public relations and building goodwill. ठीक है. दिस इज इट. ये हो गया हमारा functions of the PR department or the role of public relations. Right, Vishay? Okay. Now, ये भी एक चीज है पब्लिक रिलेशंस टॉपिक में which also we are going to talk about. वैसे मैंने आपको बताया था सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ PR है आपके सिलेबस में, तो कॉन्सेप्ट तो हमारे यहीं पे खत्म हो जाता है जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं.
बट फिर भी मैंने आपको रोल भी रीड करवाया कि इससे रिलेटेड अगर कुछ केस स्टडी में आ जाता है तो आप रिकग्नाइज कर सको। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा आ जाता है कि एक कंपनी है, वो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत काम करती है और इससे उसकी गुडविल अच्छी हो रही है, तो ये बताओ कौन सा प्रमोशनल टूल है, राइट? सो अगर हमने ये नहीं पढ़ा होगा रोल तो फिर हम नहीं बता पाएंगे, इवन दो हम गुडविल से शायद गेस कर लेंगे, बट स्टिल इसलिए मैं आपको ये रीड करवा रही हूँ। देन in addition, maintaining good public relations also helps in achieving the following marketing objectives. तो कह रहे हैं जब हम ये पब्लिक रिलेशंस के लिए काम करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे फुलफिल होते हैं। जैसे building awareness. Public relations department can place stories and dramatize the product in the media. This will build marketplace excitement before the product reaches the market or media advertising takes place. This usually creates a favorable impression on the target customer. Yes, ये काफी कॉमन है और इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई प्रोडक्ट अभी आया नहीं है, लॉन्च होना है, उससे पहले ही उसको ड्रामेटाइज कर दो कि ये प्रोडक्ट आने वाला है, इसमें ये फीचर्स होंगे, ये ऐसा होगा वैसा होगा। थिंक अबाउट अ मूवी ऑल्सो, व्हेन अ मूवी कम्स आउट तो उसको कितना ड्रामेटाइज करते हैं, उसका ट्रेलर शो करते हैं, इतनी सारी उसके लिए लॉन्चेस इवेंट्स होते हैं, सो एज टू क्रिएट अ लेवल ऑफ एक्साइटमेंट अमंग द ऑडियंस, राइट? एंड नॉट जस्ट एक्साइटमेंट बट ऑल्सो मेकिंग देम अवेयर कि ये प्रोडक्ट आ रहा है। जैसे अभी iPhone 14 इज गेटिंग लॉन्च्ड, तो उससे रिलेटेड वैसे उसको तो इतना उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि लोगों में एक्साइटमेंट ऑलरेडी ही होता है, बट स्टिल लाइक दे विल डू एन इवेंट, everyone knows okay in the month of September the new iPhone gets launched, then they will describe the phone a few days before it is actually available in the market. They are going to do this launch event जिसमें वो फोन के बारे में बताएंगे, उसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। सो वी दे आर ड्रामेटाइजिंग द प्रोडक्ट एंड इससे एक लोगों के मन में एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। Then, building credibility. If news about a product comes in the media, whether print or electronic, it always lends credibility and people believe in the product since it's in the news. I think you can understand. कोई भी प्रोडक्ट है उसको मीडिया में जितना ज़्यादा आप देखते हो, न्यूज़ मतलब न्यूज़ में भी हो सकता है, बट एडवर्टिजमेंट में देखते हो या सोशल मीडिया पे कहीं पे उसके बारे में देखते हो, तो जितना ज़्यादा आप एक प्रोडक्ट के बारे में सुनते हो देखते हो, उतना आपकी उसमें क्या क्रिएट हो जाती है विषय। So credibility is like you start believing, okay, this product it seems nice because I'm seeing it everywhere. So building credibility. Stimulates sales force. It becomes easier for the sales force to deal with the retailers and convince dealers if they already heard about the product in the news before it is launched. Retailers and dealers also feel it's easier to sell the product to the ultimate consumer. तो देखो ये भी अच्छा पॉइंट है। आप पहले ही एक हाइप क्रिएट कर दो अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसको हर जगह न्यूज़ फैला दो, तो जो रिटेलर्स हैं उनको भी सामान देना इजी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी न्यूज़ में देखा होगा अच्छा ये प्रोडक्ट है, वी शुड कीप इट एट आवर स्टोर क्योंकि इसकी तो आजकल इतनी बातें हो रही हैं, राइट? तो रिटेलर्स और डीलर्स को भी कन्विंस करना इजी होगा इफ दे हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट द प्रोडक्ट, और इनफैक्ट उस प्रोडक्ट को सेल करना भी इजी होगा to the ultimate consumer if there is a lot of news around it. And the last, lowers promotion costs. Maintaining good public relations costs much less than advertising and direct mail. However, it requires lot of communication and interpersonal skills to convince the media to give space or time for the organization and its product. So they're saying कि ये जो public relations का जो tool है, वैसे देखें तो ये एडवर्टाइजिंग वगैरह से सस्ता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में तो यू कैन स्पेंड क्रोर्स ऑफ रुपीज, उससे तो ये सस्ता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है मीडिया के साथ, बी इट प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया नाउ डेज, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए। इमेजिन द पर्सन, the people who are there in the PR department,
उनकी स्किल्स कैसी होंगी, इंटरपर्सनल, उनमें ऐसी स्किल्स होंगी कि वो लोगों को कन्विंस कर सकें अबाउट समथिंग। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन चाहिए और बहुत अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, स्पेशली मीडिया से बात करने के लिए या मीडिया को कन्विंस करने के लिए कि वो हमें अपना स्पेस दे, हमारे बारे में बात करें। सो वैसे ये सस्ता है एडवर्टाइजिंग से, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। डू यू अंडरस्टैंड? चलो इसको भी लिख लेते हैं वैसे, बिकॉज नोटबुक में लिखा होता है तो इट बिकम्स इजियर टू लर्न इट। पब्लिक रिलेशंस helps in achieving the following marketing objectives. The following marketing objectives. Number one, building awareness. एक हाइप क्रिएट करो, ड्रामेटाइज करो प्रोडक्ट को इवन बिफोर इट रीचेस द मार्केट, सो दैट लोगों में एक क्या क्रिएट हो, और एक्साइटमेंट। पब्लिक relations department can place stories and dramatize the product in the media. This will build marketplace excitement. This will build marketplace excitement. Before the product reaches the market. और इससे एक फेवरेबल इम्प्रेशन भी क्रिएट होता है। This usually creates a favorable impression on the target customer. Right. Then we have building credibility. Building credibility. जब आप एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हो, न्यूज़ में देखते हो, तो आपको लगने लगता है कि हाँ ये अच्छा ही प्रोडक्ट होगा, you start believing in it. So if news about a product comes in the media, whether print or electronic, it always lends credibility. It always lends credibility. And people believe in the product since it is in the news. And people believe in the product since it is in the news. Then stimulates sales force कि डीलर्स और रिटेलर्स को कन्विंस करना भी इजी होगा इफ दे हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट द प्रोडक्ट, और उनके लिए सेल करना भी इजी होगा. इट बिकम्स इजियर
for the sales force to deal with the retailers and convince dealers if they have already heard about the product, if they have already heard about the product in the news. Do you understand, Michelle? Can we move on? Okay, the last point is lowers promotion costs. Lowers promotion costs. कि वैसे ये चीपर है देखें तो एडवर्टाइजिंग से, बट इसमें चाहिए बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. मेंटेनिंग public relations, good public relations, costs much less than advertising. However, it requires a lot of communication and interpersonal skills to convince the media to give space or time for the organization and its product. To give space or time for the organization and its product. So this is it about public relations. कल विषय हम सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड. ओके, राइट. सो पब्लिक रिलेशंस में पहले हमने पढ़े फंक्शंस. फर्स्ट वी स्टडीड द कॉन्सेप्ट, देन फंक्शंस एंड देन द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स दैट इट सीक्स टू अचीव. तो फंक्शंस में हमने पढ़ा प्रेस रिलेशंस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट पब्लिसिटी, लॉबिंग एंड काउंसलिंग. और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स विच इट सीक्स टू अचीव, उसमें हमने पढ़ा lowers promotion costs, stimulates sales force, building credibility and building awareness. Right? Alright, अब हम ये पढ़ेंगे विषय दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. ये भी हमें पढ़ के जाना है पेपर में. सो एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल फॉर्म है और पर्सनल सेलिंग एक पर्सनल फॉर्म है. ये तो एक बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस डिफरेंस है दोनों में. सिंपल. Advertising involves transmission of standardized messages, that is, same message is sent to all the customers in a market segment. In personal selling, the sales talk is adjusted, keeping view customers' background and needs. अगर उनको मेरी बात समझ नहीं आ रही, I'll explain them in a different manner or maybe in a different language. So personal selling is very flexible because you can adjust according to the needs of the customers. But advertising is very inflexible, right? अच्छा, अब आप पढ़ो next point.
यू कैन अंडरस्टैंड दिस। इसमें मास रीच होती है, बहुत सारे लोगों तक एडवर्टाइजमेंट पहुंचती है, पर इसमें लिमिटेड लोगों को ही आप अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम और कॉस्ट लगता है कि सबको विजिट करना अगर हो तो इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकते आप। नेक्स्ट यू रीड। Quite high in case of personal selling. Remember, I was giving you an example to explain this point. Yes, ma'am. इकोनॉमी एक पॉइंट था मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में, उसमें मैंने बताया था कि एडवर्टाइजिंग सस्ती होती है अगर हम इसको पर पर्सन से देखें, पर पर्सन जितने लोगों तक ये पहुंची है उसके हिसाब से देखें तो इसकी कॉस्ट कम होती है, बट यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि आप कम लोगों तक पहुंच पाते हैं, तो पर पर्सन कॉस्ट इज क्वाइट हाई। नेक्स्ट। Advertising can cover the market in a short time. Personal selling efforts take a long time to cover the entire market. ये तो सिंपल है, इसमें आप कम समय में काफी मार्केट को कवर कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर आपको पूरी मार्केट को कवर करना है। नेक्स्ट। करेक्ट, यू कैन अंडरस्टैंड। इसमें हम टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स का सहारा लेते हैं और यहाँ पे सेल्स स्टाफ, सेल्स पर्सन ही होंगे, तो वो हर मतलब उनकी लिमिटेड रीच है कंपेयर टू ऑब्वियसली टीवी एंड रेडियो। ओके, नेक्स्ट। अगेन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग इज अ मोनोलॉग, तो बस आप बोल रहे हो, मतलब एडवर्टाइजिंग बोल रही है, आगे लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में या प्रोडक्ट के बारे में हमें नहीं पता लगता, पर यहाँ पे इमीडिएटली और डायरेक्टली हमें फीडबैक मिल जाता है लोग प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है प्रोडक्ट के बारे में, वी गेट टू नो इमीडिएटली। नेक्स्ट। तो यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, और पर्सनल सेलिंग ज़्यादातर तब अच्छा रहता है जब आप बिल्कुल नया है प्रोडक्ट, बिल्कुल लोगों को कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तब ये एक अच्छा स्टेप रहेगा। जैसे कोई लोन की स्कीम आई है, लोगों को कुछ नहीं पता है उस नई स्कीम के बारे में, तो विजिटिंग देम एंड टेलिंग देम अबाउट इट मे हेल्प। तो इस एडवर्टाइजिंग से लोगों का इंटरेस्ट आप क्रिएट कर सकते हो ओवर टाइम, हो सकता है, बट ये ज़्यादा सही रहेगा एट द टाइम when the awareness has to be created. Next. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज स्टार मार्क करें। पर्सनल सेलिंग किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी रहेगी? मान लीजिए कोई बड़ी सी मशीन है और इस मशीन को कुछ स्पेसिफिक लोग ही खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक फैक्ट्री है और वहां पे आप बनाते हैं लेट्स से लेसेस, जो लेसेस लगती है ना कपड़ों के ऊपर। सपोज यू हैव अ फैक्ट्री वेयर यू मैन्युफैक्चर लेसेस, तो अब कोई बहुत बड़ी सी मशीन है लेट्स से 20 लाख की, 25 लाख की, और वो उससे आप बहुत अच्छे और डिजाइन्स बना सकते हो लेसेस के। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, तो इसमें क्या आप टीवी में ऐड दोगे कि ये एक बड़ी मशीन आई है फॉर लेस मेकिंग, यू कैन बाय इट? नो, टीवी पे थोड़ी ऐड दोगे। इसमें बेटर है पर्सनल सेलिंग। यू कैन योर सेल्फ विजिट द फैक्ट्रीज विच आर इन टू दिस बिजनेस, और उनको आप बता सकते हो कि ये मशीन है और ये बहुत एफिशिएंट है, बहुत केपेबल है,
इससे आप ज़्यादा लेसेस बना सकते हैं, ज़्यादा डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो आपको नहीं लगता इस केस में पर्सनल सेलिंग माइट हेल्प? यस, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल बायर्स हैं ये कम होते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि टीवी पे ऐड दूंगी कि इतनी बड़ी मशीन है लेस मेकिंग के लिए, ये आप खरीदो। टीवी पे ऐड देना थोड़ी इसके लिए सूटेबल रहेगा। ऐसे ही जो डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, किसी चीज में डील करते हैं, तो उनके पास आप जाके पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, ये काफी पॉपुलर होता है। मान लीजिए आप डील करते हैं, लेट्स से साइकिल्स में आप डील करते हैं, यू सेल साइकिल्स एंड यू गेट साइकिल्स, आई मीन यू आर लाइक अ ट्रेडर। तो आपके पास सब कोई विजिट कर सकता है साइकिल मैन्युफैक्चरर कि हम आपको साइकिल्स देंगे, आप आगे सेल करें, वी कैन हैव लाइक अ डील। तो ये सही रहेगा इसमें पर्सनल सेलिंग, डीलर्स और रिटेलर्स से बात करने के लिए, क्योंकि उनका नंबर कम होता है, राइट? So this is a very important point. Personal selling is more helpful in selling products to the industrial buyers or to intermediaries such as dealers and retailers who are relatively few in numbers. Okay. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश, and we have to practice case studies to completely pack up this chapter. Okay, if I ask you, tell me the feature of marketing that I'm talking about. A product will be purchased only if it is perceived to be giving greatest benefit for the money. I repeat, a product will be purchased only if it is perceived to be giving greatest benefit for the money. करेक्ट, कस्टमर वैल्यू इज द फीचर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो लोग आपका प्रोडक्ट तभी खरीदेंगे अगर उनको कोई वैल्यू मिल रही है, बेनिफिट मिल रहा है फॉर द मनी दैट दे आर स्पेंडिंग। ओके, देन आप मुझे बताना ट्रू और फॉल्स। मार्केटिंग इज अ बिजनेस फिनोमिना confined only to business organizations. True or false? False. It is not only confined to business organizations, it's equally relevant to non-profit organizations. Yes? Okay. Then you tell me, why is marketing called a social process? सी बच्चे, हमने यहाँ पे सोशल प्रोसेस बोला है, तो सबसे ज्यादा हमें कहना चाहिए देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरैक्शन. So people interact with others in order to persuade them to act in a particular way, for example, to purchase a product or a service rather than forcing them to do so. So there's a lot of interaction, there's a lot of communication. That is why it is called a social process. Proper iska ye hai answer. Social process wherein people interact, and ये भी लिख सकते हो, by which individual groups obtain what they need and want, जैसे ये आपने बोला I think, right? But along with this you also say people interact, because then it will actually mean that it is a social process. Okay, then you tell me, branding, packaging, labeling किस element का part है? Product. Okay, then tell me two important decisions to be taken under physical distribution.
First, you said deciding the channels of distribution or the intermediaries that you should use. Second, the physical movement of goods from producers to consumers. राइट विषय बात समझ में आती है? चलिए. So that is it for this class. We are going to pack up this chapter tomorrow by practicing many case studies.